Dear students, today we'll be learning a theorem. Okay, I won't be teaching you the proof of the theorem, but I'll be explaining you the concept of the theorem, and based on the concepts we'll be doing the sums. So the statement of the theorem goes like this: the ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding sides. Say if you have two triangles, say ABC is an triangle and then PQR is another triangle, okay? Or समझो ABC is similar, triangle ABC is similar to triangle PQR, okay? And when these two triangles are similar, the ratio of their areas, that is area of triangle ABC upon area of triangle PQR, the ratio of their areas will be equal to what? It will be equal to the ratio of squares of corresponding sides. What are the corresponding sides? AB and PQ, BC and QR, AC and PR. So the ratio of areas of these two triangles will be equals to what? AB square upon PQ square, BC square upon QR square, and AC square upon PR square. That is, the ratio of areas of any two triangles will be equal to the ratio of squares of their corresponding sides. This is called as what? Theorem of areas of similar triangle. What is the name of the theorem? Theorem on areas of similar triangle. Okay, so you make a note down. See now children, I'll be giving you another example. Say if there is a triangle, okay, say if there is one triangle, the name of the triangle is STU, and say there is another triangle where the name of the triangle is XYZ, and if triangle STU is similar to triangle XYZ, then by theorem on areas of similar triangle, what you can write? You can write the ratio of area of triangle STU upon XYZ will be equals to what? The ratio of the areas of these two triangles will be equal to what? The ratio of squares of their sides. What are the sides? SU square, XZ square, then UT square, ZY square, then ST square and XY square. This is the theorem of areas of similar triangle. Okay children, now based on this single theorem we'll be doing practice set 1.4. okay, तो निकाल लो सब लोग practice set 1.4. See the first question children. The question says that the ratio of corresponding sides, the ratio of corresponding sides is given to you as 5 upon 3 upon 5, and you need to find the ratio of their areas. Okay, I read the question again. The ratio of corresponding sides of similar triangle is 3:5. Find the ratio of their areas. Okay, तो साइड्स का रेशियो हमको दिया है और हमको एरिया का रेशियो ढूंढना है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट S1 एंड S2 बी द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स विथ एरिया A1 एंड A2 रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो उस ट्राइंगल का साइड्स और एरिया को हमने डिफाइन किया. साइड्स का रेशियो कितना दिया है? 3/5. तो हमने लिखा S1/S2 3/5. अब डायरेक्टली क्या करो? Theorem on areas of similar triangle लगाओ. By theorem on areas of similar triangle, the ratio of areas of any two sides, the ratio of areas of any two triangles will be equal to what? The ratio of squares of their sides. So A1/A2 is equal to S1 square upon S2 square. तो A1/A2 क्या हो गया? S1/S2 3/5 है, तो 3 square upon 5 square. This is 9/25. Okay children, it's very easy. So now sum number 2.
सम नंबर 2 देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है तुमको कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और वहाँ पे ए बी इज टू पी क्यू का रेशियो कितना दिया है, 2:3, एंड देन तुमको फिलिंग द ब्लैंक्स बोला है, fill in the blanks. Okay, so see what is given to you, area of triangle ABC upon area of triangle PQR will be equals to what, the ratio of areas of, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर रहेंगे तो उनका एरिया का रेशियो किससे इक्वल रहेगा, साइड्स के स्क्वायर से, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 2² अपॉन 3², तो ये हो जाएगा 4/9. ओके चिल्ड्रेन, नाउ the same we are going to do sum number 3. sum number 3 में देखो क्या दिया, sum number 3 में तुमको दिया है, given क्या है, given है triangle ABC similar to triangle PQR. ओके, और area of triangle ABC कितना दिया है, area of triangle ABC दिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, area of triangle PQR कितना दिया है 125 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स ले लेंगे। अब वहां पे पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब टू फाइंड पूछा है, ठीक है। देखो क्या दिया है वहां पे, सबसे पहला तो तुमको वहां पे ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो ढूंढना है, ठीक है। अब ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो कैसा ढूंढेंगे, तो तुमको पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते, दैट इज जब ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, तब बाय थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स विल बी इक्वल टू व्हाट, द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के साथ इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये दोनों का वैल्यू दिया हमको 80/125 विल बी ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। लेकिन देखो जब ये स्क्वायर निकालना है हमको, ये स्क्वायर इधर आ गया तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ए बी अपॉन पी क्यू विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 80/125. ओके चिल्ड्रेन, सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 80/125. अब देखो ये 80 जो है, सो ए बी अपॉन पी क्यू ये क्या हो जाएगा, 80 को तुमको क्या करना है, ये जो सर्ड है इसको तुमको मिक्स्ड सर्ड में कन्वर्ट करना है, राइट। तो 80 को तुम कैसे मिक्स सर्ड में कन्वर्ट करोगे, 80/125, ठीक है। अब समझो ये 80 है, तो यू विल राइट 2 40s, 2 20s, राइट, 2 10s, 5 2 5s। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4√5, बराबर। सो दिस कैन बी रिटन एज 4√5. अब ये 125 है, 125 को क्या लिख सकते हैं, 525 525 5 1, इसको लिख सकते हैं 5√5. तो ये √5 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी अपॉन पी क्यू क्या मिलेगा हमको, ए बी अपॉन पी क्यू मिलेगा 4/5. ओके चिल्ड्रेन, अब यही आंसर तुम लोग क्या कर दो, वो जो एक्टिविटी दिया है उसके क्वेश्चन उसके फिल ब्लैंक्स में फिल अप कर दो, ठीक है। थैंक यू। अब हम करेंगे सम नंबर 4. सम नंबर 4, सम नंबर 4 में देखो चिल्ड्रंस क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है गिवन, आई विल राइट इट डाउन. सो व्हाट इज बीइंग गिवन टू यू इज, you've been given that triangle LMN is similar to triangle PQR. Then you have been given that 9 times area of triangle PQR is equal to 16 times area of triangle LMN. ये तुमको दिया है, ठीक है। और तुमको दिया है कि अगर QR का वैल्यू 20 है तो you find MN, ठीक है। सो दो ट्राइंगल्स का तुमको क्या दिया है, कुछ तो रिलेशन दिया बोला, और बोला है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, उसमें का एक ट्राइंगल का साइड QR का वैल्यू दिया है 20 और तुमको दूसरे ट्राइंगल का MN का वैल्यू ढूंढना है। ओके, तो ये कैसा ढूंढेंगे, सबसे पहले देखो
9 times area of triangle PQR is 16 times area of triangle LMN. अब अगर ये 16 को लेफ्ट हैंड साइड पे है तो 9/16 विल बी इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. तो इसको तुम ले लो नंबर 1. ठीक है, तो ट्राइंगल LMN और PQR का रेशियो 9/16 है और तुमको ऑलरेडी ट्राइंगल LMN सिमिलर टू ट्राइंगल PQR इज गिवन. Therefore, by theorem on areas of similar triangles, okay, according to this theorem क्या हो जाएगा, area of triangle LMN upon area of triangle PQR will be equals to what children, will be equals to, अब इसमें से जो मुझे साइड चाहिए सिर्फ मैं उसका स्क्वायर लेगा. ये तो तीनों साइड का स्क्वायर के रेशियो से इक्वल रहेगा, लेकिन मुझे लेना क्या है, जो मुझे चाहिए वही लेना. अभी यहाँ पे QR और MN लेगा मैं, तो MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर आएगा. राइट. सो बट व्हाट इज ट्राइंगल LMN अपॉन PQR इज 16. दिस इज 16. 9/16 विल बी इक्वल्स टू MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर. ये कहाँ से मिला, यू गॉट दिस फ्रॉम 1. फिर लिखना है तुमको, लेकिन QR इज हाउ मच, 20. सो 9/16 विल बी इक्वल्स टू MN स्क्वायर. सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, इस स्क्वायर का वैल्यू इधर ले लेंगे ताकि हमको इजी हो जाएगा. तो ये हो जाएगा MN अपॉन QR इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9/16. ओके, सो MN अपॉन QR इक्वल्स टू हाउ मच, 3/4. ठीक है. नाउ आई विल टेक बट QR कितना है, बट QR इज इक्वल्स टू 20 गिवन. सो 3/4 विल बी इक्वल्स टू MN अपॉन 20. अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3 × 20/4, इसको तुम सॉल्व करोगे तो 4 5 20, राइट, और ये 5 3 15. तो MN का वैल्यू कितना मिलेगा तुमको, 15 मिलेगा. ठीक है. सो ये भी सॉल्व कर लो तुम लोग. अब हम करेंगे सम नंबर 5. सम नंबर 5 में देखो क्या दिया है. द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो हम लिखेंगे लेट द एरियाज ऑफ टू, या लेट द स्मॉलर ट्राइंगल be A1 and the larger triangle be A2. फिर ले लो, let S1 and S2 be their sides respectively. S1 मतलब छोटा ट्राइंगल का साइड, S2 बड़ा ट्राइंगल का साइड. अब तुमको क्या दिया है, छोटा ट्राइंगल का एरिया कितना है, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर. A2 कितना दिया क्वेश्चन में, अगर पढ़ के देखोगे तो 225 स्क्वायर सेंटीमीटर. चिल्ड्रन यू हैव योर बुक विथ यू. हाँ, और छोटा ट्राइंगल का साइड कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, और तुमको करस्पॉन्डिंग बिगर ट्राइंगल का साइड ढूंढना है. एंड बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ओके, नाउ as both triangles are similar, by theorem on areas of similar triangles. theorem on areas of similar triangle क्या बोलता है, दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो उसके साइड के स्क्वायर के रेशियो के साथ इक्वल रहेगा. लेकिन A1/A2 हमको दिया है 81/225. ठीक है. S1 हमको दिया है 12 ये देखो, ये हो गया S1 स्क्वायर. हम पहले ही सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे, बाद में S1 और S2 का वैल्यू, ताकि हमको इजीली मिल जाए. तो ये देखो, ये S1/S2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 81/225
तो S1 अपॉन S2 हो जाएगा 9 अपॉन 225 किसका स्क्वायर है 15 का. ओके. अब 81 S1 कितना दिया है, बट S1 इज 12, सो 12 अपॉन S2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 15. तो चिल्ड्रन इसको तुम सॉल्व करो, क्या मिलेगा तुमको, S2 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 15 अपॉन 9. You solve and get the answer here. Okay. Sum number 6, children, you have to try it by yourself. Okay. Sum number 6 will be your homework. Now solve all these sums. I'll be sending you some extra sums also. You will be solving that also and sending it to me through WhatsApp. Okay, children. Thank you.